Morning, everybody. Let's talk about fundamental duties. भारत में हर व्यक्ति राइट्स के बारे में जानता है, मेरे अधिकार क्या हैं। ड्यूटीज के बारे में कोई नहीं जानता। Everybody knows about fundamental rights, nobody knows about fundamental duties. रोज आंदोलन नजर आते हैं आपको। कोई अभिव्यक्ति की आजादी के लिए आंदोलन करता है, कोई किसान आंदोलन कर रहा है, कोई दूसरा आंदोलन कर रहा है। कभी किसी को ड्यूटीज के लिए आंदोलन करते देखा है? नेवर। तो ड्यूटीज भी समझिए, राइट्स भी समझिए, ड्यूटीज भी समझिए, दोनों समझिए। You must understand both the things. You must understand your rights. You must also understand your duties. There are some rights that everybody has all over the world. They are natural rights, nature-based rights, rights of every human being. These are there in India also. These are there in other countries also. Let's talk about those rights. These are called fundamental rights. The rights are equality before law, no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, equality of opportunities, abolition of untouchability, abolition of titles. So, people have the right to express, right to form association, right to move freely, right to practice any profession. These are fundamental rights. Okay. Now coming to duties. Well, nobody is aware about duties. For fundamental rights, you can approach Supreme Court directly. You can use writ petition. You can approach Supreme Court if your fundamental rights are violated. The freedom of religion is a fundamental right. The freedom to manage religious institutions is also a fundamental right. Nobody, no organization can be stopped from managing their religious practices. Freedom of conscience, free profession, practice, propagation of religion, these are all fundamental rights. People make still so much of hue and cry about fundamental rights, fundamental rights. We have given plenty of fundamental rights. We have given too much of freedom, in fact, to the public. Giving excess freedom has also resulted in the problems. Our country is one of the least productive countries in the world. Why it is the least productive country in the world? You all know. Maximum number of, strikes, lockouts, this thing, that thing, unproductive activities take place in India. And because of them, production stops. People are not able to earn, people are not able to grow, people are not able to do their livelihood activities. Those in job keep on getting their money because even if there is a strike, even if there is lockout, people get salaries. But those who are earning their bread and butter through their daily hard work, they are not able to get jobs because it's a strike. Every day there is Bharat Bandh. Har din Bharat Bandh. Sometimes it is a Bharat Bandh declared by the farmers. Sometimes it is a Bharat Bandh declared by politicians. Sometimes it is a Bharat Bandh declared by workers. Sometimes it is the Bharat Bandh declared by OBC caste or general caste or some other castes. So these are what are the reasons of these strikes? They say their fundamental rights are violated. Sometimes they say their cultural rights are affected. Sometimes they say their religious rights are affected. Sometimes they say their fundamental right to get some allowance from the government. Sometimes they are making some other hue and cry. But nobody talks about fundamental duties.
Obviously, human rights are important, fundamental rights are important. It is very important for us, right? It is very important for us to protect the rights of the people. We must all strive to protect the rights of the people. There is no doubt about it. I do appreciate. But what about duties? Nobody seems to be aware about duties. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right of freedom of religion, cultural and education right, right of constitutional remedies. Everybody knows about them. Everybody knows about them. Even the uneducated people have been told, farmers have been told, it is your fundamental right to claim minimum compensation. It is your fundamental right to ask the government to provide you bread. Right to education has now also become fundamental right. Right to education was not earlier in the list. Earlier, these fundamental rights are mentioned in our constitution. Article 14 to Article 18, and then Article 14 talks about equality before law. Article 15 talks about no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 16 says equal opportunity to every citizen in matter of public employment. Article 17 says no untouchability. Article 18 says abolition of all titles. Titles like he is King, Rai Bahadur or something like that. All these titles are abolished by Article 18. So these are fundamental rights, dear friends. Everybody has these fundamental rights. Then the freedoms are given. 6 freedoms are given under Article 19. These freedoms are freedom of speech and expression, freedom of assembly peacefully without arms, freedom to form association and unions, freedom to move throughout our country, freedom to reside and settle in any part of India, freedom to practice any profession, occupation, trade, or business. These are 6 fundamental freedoms. The result of these fundamental rights is that nobody can be convicted for an act that was not an offense at the time of commencement. No one can be given punishment greater than what was provided in the law. These are provided under Article 20. Article 20 gives protection to people with respect to conviction or offenses. If somebody has done some wrong, there is conviction. The conviction or the punishment or the prosecution cannot be beyond law. No one can be forced to witness against his own self. Article 21 talks about protection of life and personal liberty. Article 22 talks about protection against arrest and detention in certain cases. If anybody is arrested, he has to be presented within 24 hours before magistrate. In 2002, 86th amendment in Constitution was introduced. It was about right to education. New article, Article 21A, was inserted in the Constitution of India. It gave right to education. Children up to the age of 14 have right to education. Parliament passed the bill Right to Education Act 2009, and thereafter now every educational institution has to provide 15% seats to the people who are very poor people, so that every educational institution gives support to the people who are poor. They get education, free education. Article 23 prohibits trafficking in human beings and forced labor. बेगार, forced labor, किसी से फ्री में काम करवाना,
ट्रैफिकिंग मीन्स लोगों को मटेरियल की तरफ परचेजिंग सेलिंग करना, दिस इज बैंड। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को फैक्ट्री में नहीं अपॉइंट कर सकते, बच्चों को कहीं पर भी काम में लगा नहीं सकते। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को न कोई नौकरी दे सकता है, इट इज क्रिमिनल ऑफेंस। 14 साल के बच्चों के से तक के बच्चों को कोई नौकरी नहीं दी जा सकती। उनका अधिकार है कि उनको शिक्षा मिले, इट इज देयर राइट टू गेट एजुकेशन, it is their right to get employment, get decent food and good life। 14 साल तक के बच्चों का अधिकार है कि they should get happy childhood, it is provided in the constitution। The constitution declares India as a secular state, means the government cannot have any religion of its own। The government will give freedom to every citizen to have any faith, any religion, whatever they like। You can practice your own religion without interfering other people, right? If your religious beliefs, if your practices are causing troubles to other fellow beings, then there will be some restriction, otherwise there is no restriction। This freedom is available to everyone in India and even foreigners। And religious organizations are given freedom under Article 26 to manage their affairs independently। Article 26 says every religious group or institution has the right to manage their own affairs। They can establish religious institutions, they can manage it on their own, the government will not interfere in them। हर ग्रुप के लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को, हर धर्म के लोगों को अपनी संस्थाएं बनाने का, चलाने का अधिकार है आर्टिकल 26 में। No person can be compelled to pay any taxes for particular religion। आर्टिकल 27 says किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते कि किसी रिलीजियस पर्पस से आप चंदा दीजिए। फ्रीडम टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में किसी स्टूडेंट को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करना ना करना व्यक्ति की चॉइस है, व्यक्तिगत चॉइस है। यू कैनॉट compel anybody to attend religious instruction as per article 28। और अगर प्योरली गवर्नमेंट फंड से चलने वाली कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। जहां पर भी सरकार ने पैसा इन्वेस्ट किया है, जहां सरकार पैसा दे रही है, वहां कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। Article 25 says freedom of conscience, freedom of free profession, practice, propagation of religion, right? This is given under Article 25, right? It says you have the freedom to decide about your religion, to decide about your profession, to decide about your faith। This is freedom to everyone। Religion is a matter of freedom। Article 29 talks about protection of interest of minority। रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, कल्चर के बेस पे अगर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, उनका अधिकार है वो अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो कोई इंस्टीट्यूशन शुरू कर सकते हैं और उनको अपने धर्म के आधार पे, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के आधार पे कभी भी रोका नहीं जा सकता एडमिशंस वगैरह से। If government is giving aid to any organization,
that organization, that school, that our college cannot stop admission on the basis of religion, race, caste, language, or anything like that. Right of minorities to establish and administer educational institutions. Article 30 says minorities के लोग, अल्पसंख्यक लोग अपने अल्पसंख्यक होने के कारण अपने कल्चर, अपने रिलीजन वगैरह को प्रोटेक्शन के लिए, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आर्टिकल 30 के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मतलब स्टेट लेवल पे, राज्यों में, हर राज्य में कौन माइनॉरिटी है उसकी लिस्ट राज्य डिक्लेयर कर देते हैं। और सबसे फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, कोई आपको फ्रीडम नहीं दे रहा, कोई आपको बोलने की आजादी नहीं दे रहा, कोई आपको जबरदस्ती कमरे में बंद कर देता है, you have the right to approach Supreme Court directly. You can use writ. Writ क्या है? These writs are very powerful tools to protect the rights of citizens. Supreme Court writs यानी orders जारी कर सकता है। writs क्या क्या हैं? writs are लाइक हैबियस कॉर्पस। अगर किसी व्यक्ति ने आपको जबरदस्ती एक मकान में बंद कर दिया है, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हैबियस कॉर्पस ला सकते हैं। हैबियस कॉर्पस मींस आजादी, फ्रीडम। रिट ऑफ मैंडामस जिसमें कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन जिसमें कोर्ट रोक सकता है, कोई भी गलत काम हो रहा है उसको रोक सकता है। रिट ऑफ सर्टियोरारी, रिट ऑफ सर्टियोरारी यानी सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है और सर्टिफाई कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। रिट ऑफ को वारंटो, सुप्रीम कोर्ट किसी ऑर्डर को, उसकी लीगलिटी को चैलेंज कर सकता है, पूछ सकता है हाउ कम। ये फंडामेंटल रिट्स हैं। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव फ्रीडम विद रिगार्ड बॉडी। आपको कोई जबरदस्ती बंद नहीं कर सकता कमरे में, बंद कर दे तो हैबियस कॉर्पस। हैबियस मींस फ्रीडम एक तरह से, बॉडी, कॉर्पस मींस बॉडी, शरीर। आप अपने शरीर की आजादी के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ला सकते हैं, रिट ला सकते हैं। मैंडामस, मैंडामस का मतलब ऑर्डर। अगर कोई गलत ऑर्डर निकालता है, आप उसके खिलाफ वापस ऑर्डर ला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब रोकना। कोई व्यक्ति आपके साथ में गलत कार्य करे, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करे, यू कैन ब्रिंग रिट ऑफ प्रोहिबिशन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सर्टियोरारी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। किसी ने कोई गलत ऑर्डर पास किया, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने गलत आदेश दिया, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उसके बेस पर रिट ऑफ सर्टियोरारी ला सकते हैं। और को वारंटो मीन्स आस्किंग बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर किसी व्यक्ति को गलत नियुक्ति मिल गई आपकी जगह पे, यू डिजर्व्ड एन अपॉइंटमेंट बट समबडी एल्स टुक द अपॉइंटमेंट, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, ब्रिंग रिट ऑफ को वारंटो, और आप अपनी पोस्ट को वापस ले सकते हो। जिसको गलत अपॉइंटमेंट मिला हुआ है उसको वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो दीज आर योर राइट्स, यू मस्ट नो अबाउट योर राइट्स, बट पीपल इन इंडिया नो अबाउट देयर राइट्स वेल। व्हाट दे डू नॉट नो इज दे डू नॉट नो अबाउट ड्यूटीज। ड्यूटीज के बारे में कोई बताता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं। और राइट्स के बारे में सब जानते हैं, एक्सेसिव जानते हैं, क्योंकि हर दिन
लोग हड़ताल लिए हाथ में खड़े रहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, ये हमारा अधिकार है, देश की संपत्ति जलाना हमारा अधिकार है। वो खड़े हो जाएंगे, आंदोलन करेंगे, कारें जला देंगे, ट्रक्स जला देंगे, बसें जला देंगे, ये उनका अधिकार है। ये गलत फहमियां लोगों के दिमाग में डाल दी गई है और इसी कारण हमारा देश बर्बाद हो रहा है। देश के आधे वर्किंग डेज, हाउ मेनी वर्किंग डेज वी हैव? 365 इन अ ईयर, जिसमें से संडेज, सैटरडेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में शनिवार को भी काम नहीं होता, तो 100 डेज स्ट्रेट वे माइनस 365 माइनस 100, 265 लेफ्ट। और उन 265 में से कम 100 दिन बर्बाद हो जाते हैं, कभी स्ट्राइक, कभी लॉकआउट, कभी घेराव, कभी आंदोलन, कभी पब्लिक न्यूसेंस, कभी ये, कभी 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 ट्रेजेडी, कभी कोई नेशनल ट्रेजेडी, कभी कोरोना जैसी ट्रेजेडी। तो आउट ऑफ 365 we work for hardly 165 days. How can we be productive? How can we achieve progress? And everybody talking about rights, nobody talking about duties. राइट्स के लिए लोग पैदल चल के दिल्ली पहुंच जाते हैं, बसों में भर के दिल्ली पहुंच जाते हैं, ट्रेनों में भर के दिल्ली पहुंच जाते हैं, और अधिकार के लिए इतना कुछ, ड्यूटी के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ड्यूटीज क्या हैं? आइए ड्यूटीज की बात करें। तो ये सबका पहला ड्यूटी है, सबसे फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने देश का सम्मान करना, अपने देश के सिंबल्स का सम्मान करना, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, देश के आदर्श, देश का गौरव है, देश का नाम है, उसका सम्मान करना। ये पहला कर्तव्य, पहली ड्यूटी है हर एक। और जो दिल्ली में खड़े आंदोलन कर रहे हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं, वो देश के झंडे का भी अपमान कर देते हैं, कई बार देश की इज्जत को मटियामेट कर देते हैं। तो पहली ड्यूटी हर व्यक्ति की है देश का सम्मान। और दूसरा कर्तव्य हर व्यक्ति का है कि उन लक्ष्यों का सम्मान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने रखे, उन आदर्शों का सम्मान। फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया, किस लिए किया, कैसे किया, देश को आजादी को कैसे लेके आए, उसको ध्यान रखना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। और तीसरा कर्तव्य है देश की एकता, अखंडता के लिए काम करना, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करना, ये तीसरा कर्तव्य है। और चौथा कर्तव्य है देश की सुरक्षा करना, डिफेंड द कंट्री। जब भी जरूरत पड़े तो युद्ध भूमि पे जाना, पर देश की सुरक्षा करना। दीज आर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए लोग दिल्ली में हड़ताल करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। अब वक्त आ गया है उन्हें बताइए, आप अपनी ड्यूटीज पहले पूरी करिए, पूरी ड्यूटीज पूरी हो जाए, बाद में आप अधिकार की बात करिए। फर्स्ट सबमिट योर ड्यूटीज। जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनको पहले चीन के बॉर्डर पर भेजिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजिए कि जाइए देश की सुरक्षा के लिए 2 दिन बिता करके आइए। डिफेंड द कंट्री, अपने देश की रक्षा हम सबका कर्तव्य है। आज सबसे बड़ी जरूरत है आर्थिक तरक्की में, इकोनॉमिक वार से देश की सुरक्षा करना। आज सबसे बड़ी जरूरत है बायोलॉजिकल वार में देश की सुरक्षा करना। यह भी एक इंपॉर्टेंट कर्तव्य है। और इसके अगला कर्तव्य, पांचवा कर्तव्य है भाईचारे को बढ़ावा देना।
लोगों में भाईचारे को बढ़ावा देना, इंसान इंसान में भाईचारे को बढ़ावा देना, हर भारतीय में आपस में तालमेल बनवाना, हर भारतीय में भाईचारे को बढ़ावा देना, ये हम सबका फंडामेंटल कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है। और इसमें खास तौर पर ऐसे कोई कार्य नहीं करना जिससे महिलाओं की डिग्निटी कम हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे महिलाओं को परेशानी हो। छठी ड्यूटी क्या है, सिक्स ड्यूटी क्या है? व्हाट इज द सिक्स ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन आवर कंट्री? टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, हमारी संस्कृति को बचाना, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति को बचाना, हमारी हेरिटेज को बचाना, हमारी हेरिटेज, हजारों वर्षों की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इट इज द ड्यूटी ऑफ, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज। What is the next duty? सेवंथ ड्यूटी है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम प्रकृति की सुरक्षा करें, प्रकृति को बचाएं, जंगल बचाएं, नदियों को बचाएं, प्राणी मात्र को बचाएं, वाइल्ड लाइफ को बचाएं, ये हम सबका कर्तव्य है। पेड़ लगाएं, ये हम सबका कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी टू प्लांट ट्रीज। आठवीं ड्यूटी क्या है? व्हाट इज द एट्थ ड्यूटी? एट्थ ड्यूटी इज टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, साइंटिफिक सोच विकसित करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, मानवता का विकास करना, टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म, ह्यूमनिज्म, अपने समाज के विकास के लिए लोगों में चेतना जगाना, वैज्ञानिक सोच, तर्क के ऊपर आधारित, चेतना पर आधारित वैज्ञानिक समझ लोगों में पैदा करना, यह हम सबका कर्तव्य है। और नौवां कर्तव्य है सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, और हिंसा न करें। नौवां हम सबका कर्तव्य है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित करें, बचाएं और कहीं भी किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियों में भाग न लें। और 10वां कर्तव्य है टू सर्व टुवर्ड्स एक्सीलेंस, जो भी काम करें अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें, एक्सीलेंस, और कलेक्टिव एक्टिविटी को बढ़ावा दें। अपने अपने कार्य शानदार ढंग से करें, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज अच्छे से करें, जो काम करें शानदार, एक्सीलेंस, यह हम सबका कर्तव्य है। और 11वां कर्तव्य है एजुकेशन। 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। इट्स आवर ड्यूटी कि 14 साल तक के बच्चों को हम सभी बेस्ट चाइल्डहुड प्रदान करें, उनको श्रेष्ठ पढ़ाई, खेलकूद और बचपन जिसको कहते हैं हंसता खेलता बचपन, हर बालक का अधिकार है। और ये 11 कर्तव्य हर व्यक्ति के फंडामेंटल कर्तव्य हैं, जो पता नहीं है लोगों को। राइट सबको पता है, कर्तव्य किसी को पता नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों की जानकारी होनी चाहिए। राइट्स तो सब बता देते हैं आपको, ड्यूटीज के लिए कोई नहीं बताता, तो ड्यूटीज भी बताइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं राइट्स। राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ड्यूटीज के लिए कोई जाएगा ही नहीं। तीसरी चीज है डायरेक्टिव पॉलिसी, सरकार की नीतियां क्या होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। सरकार के क्या कर्तव्य, राइट्स यानी आपके अधिकार, ड्यूटीज यानी आपके कर्तव्य, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी सरकार के कर्तव्य।
सरकार को क्या करना चाहिए, वो कहलाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वो भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये बताया हुआ है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को रोजगार दिलाए, पर्यावरण की रक्षा करे, अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशंस पे करे, देश के अंदर अमन का माहौल बनाए। ये सरकार के कर्तव्य हैं, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेकिन उनके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि वो गाइडलाइंस हैं। तो हम सब लोगों को बताना है कि सिर्फ आंदोलन मत करें, देश को प्रोडक्टिव कंट्री बनाएं, तरक्की करने वाला देश बनाएं, और इसके लिए अपने अपने कर्तव्यों को समझें, अपने अपने कर्तव्य करें। We should all understand our duties and try to promote our country. Thank you all.